मॉर्निंग। हमने स्टार्ट किया था लास्ट में लाइन चैप्टर। फर्स्ट स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर. Its a vector form equation is r bar equal to a bar plus lambda b bar. This is the vector form equation. Second one, study the equation of line passing through the 2 point. Its equation is r bar equal to a bar plus lambda in bracket b bar minus a bar. Line passing through the 2 point. Next one, study the equation of line passing through the point and perpendicular to the 2 vectors. That time the equation is r bar equal to a bar plus lambda m bar, but m bar is what? Cross product of the perpendicular vector. Suppose the perpendicular vectors are b bar and c bar. It's a cross product, means to form a parallel vector, that is the m bar, means m bar equal to b bar cross c bar. After that, study the angle between the two lines. Angle between the two lines, formula cos theta equal to a bar dot b bar upon ab. This is study in vector. If given here the direction ratios, then the formula of angle between the lines is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon first root of a1 square plus b1 square plus c1 square into second root of a2 square plus b2 square plus c2 square. This is the formula of angle. Next, study the condition of lines are perpendicular. We know that if the lines are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. This is the condition of perpendicular lines. Similarly, what is the condition of parallel lines? a1 upon a2 equal to c1 upon c2, means the direction ratios are in a proportion. ये condition है parallel का, ये है perpendicular. This is the formula of angle between the lines. This is the equation of line passing through the point and perpendicular to the 2 vector. This is the equation of line passing through the 2 points. This is the equation of line passing through the point and parallel to the vector. ये अलग अलग formula हमने study किया. Okay, to start the next part of this chapter, that is the distance. हमें study करना है distance. Write down the title, distance. At the first point, this is important for the entrance. If the two lines are intersect, in a space, if two lines are intersect in a space, then shortest distance between them, is 0. Then shortest distance between them is 0. Means entrance में simple question होगा, if two lines intersect in a space, then yes dot d मतलब shortest distance. ऑप्शन में कुछ अलग अलग होगा, बट क्या रहेगा? shortest distance 0 रहेगा. Second point, if two lines are parallel in a space, then shortest distance is perpendicular distance between them. Then shortest distance is perpendicular distance between them. फिर से आप लोगों के दिमाग में आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है. सपोज ये लाइन है, स्पेस में ये पैरेलल है. शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Theoretically, the lines are a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is the linear form equation of the line. a2x plus b2y plus c2 equal to 0.
distance between the parallel lines is a mod of c1 minus c2 upon under root of a square plus b square. Difference between the constant डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सॉरी ये ए एक्स ये ऐसे ही रहेगा, मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम चाहिए तो वो पैरेलल है. ओनली चेंज इन द कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहेगा. मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0. दीज आर द पैरेलल. How to decide the lines are parallel? Coefficient of x, y are same, means the lines are parallel and distance between the parallel lines, this is the formula, mod of c1 minus c2 upon root of a square plus b square. Next one, point number 3. In a space, if two lines are neither parallel nor intersecting, in a space if two lines are neither parallel nor intersecting, these lines are called Q lines. Q lines in bracket non-coplanar. Q lines. Coplanar मतलब lies in same plane. नॉन कोप्लेनर नॉट सेम प्लेन. हमने स्टेटमेंट में लिखा है नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, मतलब कहां पर भी हो सकते हैं. These are called as the skew lines. Yeah, it is also called as non-coplanar lines. Next line. Therefore, the lines are r bar equal to a1 bar plus lambda b1 bar. And second, r bar equal to a2 bar plus mu b2 bar. I can considering the two lines in a vector form. We know that the equation of line r bar equal to a bar plus lambda b bar, but two lines इसलिए a1 b1 a2 b2 लिया. Shortest distance between the skew lines. Shortest distance between the skew lines equal to mod of a2 bar minus a1 bar dot b1 bar cross b2 bar upon magnitude of b1 bar cross b2 bar. This is the formula of shortest distance between the two skew lines. Then the shortest distance is mod of a2 bar minus a1 bar dot b1 bar cross b2 bar upon magnitude of b1 bar cross b2 bar. Line if is this form, then the shortest distance, this is the formula. Clear हुआ यहाँ तक? Actually this is the triple product. This bracket मतलब first vector, this is second vector, this is the third vector. मतलब ये जो numerator, this is the a bar dot b bar cross c bar. ये डॉट है ये क्रॉस है, मतलब दिस इज द ट्रिपल प्रोडक्ट है. एंड डिस्टेंस रहा तो मॉड आता है क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. कि पहले भी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस. क्या फॉर्मूला लिखा? मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एक्चुअली डिस्टेंस है मतलब मॉडुलस मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी. डिस्टेंस रहा तो मॉड आएगा ही. क्लियर हुआ ये? ये वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर to find out the shortest distance between the skew lines. Actually here find out the three distances. First one, if the lines are intersecting then the shortest distance is a 0. If the lines are parallel then shortest distance formula mod of c1 minus c2 upon under root of a square plus b square. But if the lines are neither parallel nor intersecting, मतलब वो parallel ही नहीं है और intersecting भी नहीं है, these are called as the skew lines. The lines are is this type
and distance between these type of the lines is mod of a2 bar minus a1 bar dot b1 bar cross b2 bar upon magnitude of b1 bar cross b2 bar. ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है. यहां तक क्लियर हुआ? बस इतने ही फॉर्मूले ये चैप्टर में हैं. कौन कौन से फॉर्मूले हमने इसमें स्टडी किया? फर्स्ट हमने स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर. सेकंड वन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स. नेक्स्ट वन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर. नेक्स्ट स्टडी द फॉर्मूला एंगल बिटवीन द टू लाइन्स. नेक्स्ट वन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स. नेक्स्ट वन कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स. आफ्टर दैट स्टडी द डिस्टेंस. कोई डिफिकल्टी कही है? बहुत सिंपल है वेक्टर, बट सिर्फ शॉर्टकट में हमें चैप्टर का समरी पता चाहिए. एक बार समरी मालूम रहा तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, कोई डिफिकल्ट नहीं है. राइट डाउन द एग्जांपल. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the point. Find the foot of perpendicular from the point 0 to 3. Coordinate of the point 0 to 3. Find the foot of perpendicular from the point 0 to 3 on the line. On the line x plus 3 upon 5 equal to y minus 1 upon 2 equal to z plus 4 upon 3. Also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 सब क्वेश्चन है. सपोज ये लाइन है. लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 3. फ्रॉम द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है 0 to 3. सपोज द पॉइंट हम अज्यूम करते हैं P एंड सपोज दिस पॉइंट इज M. Question first, find the foot of perpendicular means find the coordinate of M. This is the first question. Foot of perpendicular means perpendicular to this line at this point. This point is called as the foot of perpendicular. And second sub question is what? What is the second sub question? Length of perpendicular मतलब length of PM. ये second question है. First one, using given information to find the coordinate of M. ये हमें फाइंड करना है. ये इक्वेशन ऑफ लाइन है. कौन से फॉर्म में? वेक्टर या कार्टेशियन? कार्टेशियन फॉर्म में. फर्स्ट वन, कंसिडरिंग लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू सपोज द लैम्बडा. ऑल आर इक्वल है. हमने विथ प्रूफ स्टडी किया. इक्वल टू लैम्बडा आता है. राइट है. मीन्स एवरी रेशियो इक्वल टू लैम्बडा. देन x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू लैम्बडा मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 5 लैम्बडा. x का वैल्यू आएगा 5 लैम्बडा माइनस 3. कोई डाउट है? सिमिलरली टेल मी हियर y माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्बडा. y इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 1. सिमिलरली z plus 4 equal to 3 lambda. z equal to 3 lambda minus 4. These are the values of x, y, z. x, y, z का values मिल गया. x, y, z मतलब locus point on the line मतलब coordinate of M. Therefore coordinate of M. Coordinate of M इक्वल टू M के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए मुझे? 5 लैम्बडा माइनस 3. दिस इज x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट क्या मिला? 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड z कोऑर्डिनेट 3 लैम्बडा माइनस 4. ये x y z का वैल्यू आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ M. यहां तक समझ में आया? हेलो लुक हियर. कंसीडरिंग द फर्स्ट इक्वल टू लैम्बडा, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट.
यूजिंग दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब यम के कोऑर्डिनेट मिल गए ना हमें, एंड यम इज कॉल्ड एज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बट हियर इन अ कोऑर्डिनेट वन अननोन कांस्टेंट, ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा तो हमें एक्चुअल कोऑर्डिनेट चाहिए, लैम्बडा तो हमें नहीं चाहिए, मींस द फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट टारगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ये आपका टारगेट है। आफ्टर दैट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ P 0 2 3, कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट क्या है 0 2 3, ये P के कोऑर्डिनेट है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ PM, डायरेक्शन रेशोज A1 B1 C1 ABC हम डायरेक्शन रेशोज कंसीडर करते हैं। व्हाई फाइंड द डायरेक्शन रेशोज, ये इंपॉर्टेंट है, हमें लैम्बडा ढूंढना है, हमें पता है PM परपेंडिकुलर टू लाइन L, ये क्वेश्चन में ही दिया है, परपेंडिकुलर है, and we know that if the two lines are perpendicular then we know the relation between the direction ratios. What is the relation between the direction ratios? A1 A2 plus C1 C2 equal to what? और equal to क्या होता है 0. This is the condition of perpendicular lines. That's why find out the direction ratios. Direction ratios of PM कैसे find करोगे? Line passing through the 2 points, direction ratios of line क्या फॉर्मूला है x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स में से p के कोऑर्डिनेट 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करना है, m में से p के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है, तो कम ऑन 5 लैम्बडा माइनस 3 माइनस 0, तो क्या मिलेगा 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 lambda plus 1 minus 2, then what 2 lambda minus 1, 3 lambda minus 4 minus 3, 3 lambda minus 7, क्लियर हुआ कहां से आई है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, इफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन रेशियोज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, this is study in 3-dimensional geometry. 3D में हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था हमने 3D में? डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज एंड लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, देन द डायरेक्शन रेशियो जो अभी यूज किया, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L, टेल मी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, थ्योरेटिकली A2 B2 C2, A1 B1 C1 लिया तो A2 B2 C2 आएगा, ये जो गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज बोलो, करेक्ट, डिनोमिनेटर वैल्यू मतलब डायरेक्शन रेशियोज होता है, हमने स्टडी किया ये, तो ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या आएगा 5 2 3, ये डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये A2 B2 C2, दिस इज द A1 B1 C1 एंड वी हैव गिवन इन क्वेश्चन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, PM perpendicular to L, this is given in question. हेलो राइट है कि नहीं? ये क्यों कर रहे हैं हम? टू फाइंड आउट द अननोन कांस्टेंट, इसलिए हम ये कंडीशन यूज करें, एंड वी नो द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, क्या कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. कम ऑन टेल मी हियर प्रोडक्ट, 5 मल्टीप्लाई 5 लैम्बडा माइनस 3 plus 2 multiply 2 lambda minus 1 plus 3 multiply 3 lambda minus 7 equal to 0, and write the simplification. 25 lambda minus 15 plus 4 lambda minus 2 plus 9 lambda minus 21 equal to 0. हेलो राइट है कि नहीं? चलो करो सिंप्लीफिकेशन, 25 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा 38 लैम्बडा, 38 लैम्बडा, कांस्टेंट बोलो, माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 17 माइनस 21 माइनस 38 ट्रांसफर टू RHS इक्वल टू व्हाट 38, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1, लैम्बडा का वैल्यू आएगा 1. यूज this information and to find the unknown constant means the lambda, lambda का वैल्यू मिल गया, अभी एक्चुअल कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, मतलब सपोज इफ यू राइट द हियर इक्वेशन नंबर 1, देन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1
तो हमें क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ यम, वही है ना इक्वेशन 1, कोऑर्डिनेट ऑफ यम इक्वल टू, यम के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, बोलो लैम्बडा का वैल्यू 1 डालना है, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, सेकंड 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 4, सिंप्लीफाई करो 2 4 माइनस 1, सॉरी 2 3, राइट 2 3 माइनस 1, यह है कोऑर्डिनेट ऑफ यम, ये यम के कोऑर्डिनेट आ गए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट वन, मतलब दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, देयरफॉर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही क्वेश्चन है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यम, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ यम इज 2 3 माइनस 1, यम के कोऑर्डिनेट आ गए। सेकंड सब क्वेश्चन इज व्हाट, लेंथ ऑफ पीएम, कैसे फाइंड करोगे लेंथ ऑफ पीएम, व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ लेंथ ऑफ पीएम इक्वल टू, लेंथ ऑफ पीएम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कौन सा फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, हमें यही फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पीएम, ये क्लीन करूं मैं, चलो पीएम हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू, पुट करो वैल्यू, पी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये पी के कोऑर्डिनेट है और ये यम के कोऑर्डिनेट है, पीएम 2 माइनस 0 स्क्वायर, राइट है क्या, देखो प्लस y2 माइनस y1, बोलो क्या आएगा, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट है, z2 माइनस 1 माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, करो सिंप्लीफिकेशन, व्हाट हियर 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, एडिशन किया तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 21 यूनिट्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या मिला हमें, रूट 21 यूनिट्स, ये सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस कोऑर्डिनेट ऑफ यम, ये था, एंड सेकंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये आया। फर्स्ट वन कंसीडर इक्वल टू लैम्बडा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड मतलब पॉइंट ऑन द लाइन, मींस कोऑर्डिनेट ऑफ यम मिल गया हमें ये, बट इन कोऑर्डिनेट वन अननोन कांस्टेंट। आफ्टर दैट फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम, we have given the direction ratios of linear, use the condition of perpendicular, this is the condition of perpendicular, using this information to find the value of unknown constant, put this value in the coordinate of m and find the real actual coordinate of m, means the foot of the perpendicular. Next one, use the distance formula between the point p and m, means to form the length of perpendicular या perpendicular distance. सिंपल है कि नहीं, चलो राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप।
अच्छी तरह नोट करना है, जो लिखा वो हमें समझ में आना चाहिए। ये एंट्रेंस में भी बहुत इजी है, बहुत शॉर्टकट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गए सब लोगों का? एंट्रेंस में क्वेश्चन है, सपोज फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ये तो मैंने बाय रूल फाइंड आउट किया, हमें शॉर्टकट से एंट्रेंस के लिए आना चाहिए। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपका क्वेश्चन है। द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, ऐसे स्टेटमेंट गिवन रहेगा। अब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो ये टाइप में था, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। मीन्स m point lies on the line, means what is the conclusion? Coordinate of m satisfy the equation of the line। मतलब ऐसा ऑप्शन होगा जिससे ये लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वही ऑप्शन करेक्ट है। मतलब पुट द 1 by 1 value in this equation if all the ratios are same, means that is the point on the line। very simple, मीन्स 1 by 1 ऑप्शन पुट करके देखना है। पहला x का वैल्यू क्या है? 2, 2 plus 3 5, 5 by 5 1, 5 by 5 is 1, मतलब सबका आंसर 1 जिससे आएगा वही। अभी सेकंड वैल्यू क्या है? y का 3, 3 minus 1 2, 2 by 2 1। z का वैल्यू देखो -1, -1 plus 4 3, 3 by 3 1, सब सेम आया, मतलब ये पॉइंट करेक्ट, राइट है कि नहीं? एंट्रेंस में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बी में कुछ यहाँ पे -3 होगा, सी में यहाँ पे -2 होगा, कुछ तो हो सकता है। करेक्ट चेक करना है तो वह पॉइंट से इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वही ऑप्शन करेक्ट है। 2 3 -1 से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आंसर भी चेक करना रहा हमने करेक्ट फाइंड आउट किया कि नहीं। तो ये लाइन के इक्वेशन में पुट करके देखना, और सब रेशो इक्वल आया तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ओके, ये हुआ सब लोगों का। चलो राइट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम टाइप, यू ट्राई द नेक्स्ट वन। आप कर सकते हैं। Next one, find the foot of perpendicular, draw from the point. Write the question, find the foot of perpendicular, draw from the point 2i minus j plus 5k from the point to the line r bar equal to 11i minus 2j minus 8k plus lambda in bracket 10i minus 4j 10i minus 4j minus 11k minus 11k. Also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। यही क्वेश्चन था प्रीवियस में, बट क्या चेंज हुआ? प्रीवियस गिवन एंड दिस गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस? राइट, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन में चाहिए, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड होना चाहिए। वी हैव गिवन हियर वेक्टर फॉर्म, हियर इक्वेशन, राइट है ना? लेट पी, चलो हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट मतलब पी, टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। वेरी गुड, 2 minus 1 5। इक्वेशन ऑफ लाइन, कम ऑन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, टेल मी कार्टेशियन। अभी आप लोगों को आना चाहिए,
आर बार मतलब आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो पी का पोजीशन वेक्टर आर बार है, पी के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, तो आर बार क्या आएगा, आर बार इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इससे आएगा कि नहीं। ये 11 आई यहां ट्रांसफर मतलब x माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू y माइनस 2 ट्रांसफर ईयर y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन माइनस 11 इक्वल टू लैम्बडा। कहां से आया, समझ में आया? चलो नहीं आया तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ऑलरेडी स्टडी इन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्टडी इन द लाइन में विद प्रूफ मैंने ये बताया आप लोगों को। शुरू में जो थ्योरम प्रूव किया है वह थ्योरम में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। आर बार की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट किया तो ये मिलेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये 11 आई यहाँ ट्रांसफर माइनस 11 आई प्लस 2j प्लस 8 के इक्वल टू लैम्बडा इन ब्रैकेट 10 आई माइनस 4j माइनस 11 के। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, ये आई का टर्म x माइनस 11 इंटू आई प्लस वाई प्लस 2 इंटू जे प्लस जेड प्लस 8 इंटू के लैम्बडा मल्टीप्लाई 10 आई माइनस 4j माइनस 11 के। अभी आई के कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, x माइनस 11 इक्वल टू 10 लैम्बडा, देखो राइट है का, आई कैंसल। अभी जे का टर्म देखो, कम ऑन, y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4 लैम्बडा, z प्लस 8 इक्वल टू माइनस 11 लैम्बडा, ये 10 ट्रांसफर ईयर x माइनस 11 अपॉन 10 इक्वल टू लैम्बडा, y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू लैम्बडा, z प्लस 8 अपॉन माइनस 11 इक्वल टू लैम्बडा। कितना इंटरेस्टिंग है ना, एवरीवेयर इक्वल टू लैम्बडा मतलब ऑल इक्वेशन आरएचएस से, मतलब इक्वेटिंग डायरेक्टली व्हाट, एलएचएस। एलएचएस को इक्वेट करो x माइनस 11 बाय 10, y प्लस 2 अपॉन माइनस 4, z प्लस 8 अपॉन माइनस 11 इक्वल टू क्या है, लैम्बडा। वही तो लिखा है मैंने। क्लियर हुआ कहां से कन्वर्जन आता है? ये मैंने बाय रूल बताया, आपको ओरली आना चाहिए। x ये ट्रांसफर माइनस, इस ट्रांसफर डिवाइड, ये फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर, ये सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर, ये थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, मतलब ये ABC है। ये है वेक्टर फॉर्म इक्वेशन एंड दिस कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। माइनस 2 ट्रांसफर ईयर प्लस 2 माइनस 8 ट्रांसफर ईयर प्लस 8, मजा आएगा, 100% आएगा, इक्वल टू क्या मिला, लैम्बडा। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये टाइप में आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 5। लाइन का इक्वेशन तो यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट वन, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m इक्वल टू लैम्बडा, मतलब एवरी रेशियो इक्वल टू लैम्बडा। x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू व्हाट, 10 लैम्बडा प्लस 11, देखो राइट है का, 10 लैम्बडा माइनस 11 ट्रांसफर प्लस 11, कॉन्सेंट्रेट करो, y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4 लैम्बडा, मतलब y इक्वल टू माइनस 4 लैम्बडा माइनस 2, z प्लस 8 अपॉन माइनस 11 इक्वल टू लैम्बडा माइनस 11 ट्रांसफर 8 ट्रांसफर, z इक्वल टू माइनस 11 लैम्बडा माइनस 8। Therefore, coordinate of m equal to x coordinate 10 lambda plus 11, y coordinate minus 4 lambda minus 2, z coordinate minus 11 lambda minus 8। क्लियर हुआ? What is the next operation? अभी क्या करोगे इसके बाद? राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ p तो यहाँ पे मैंने लिखा है। अभी डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm। अभी हमें लिखना है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं pm? डायरेक्शन रेशियोज ABC का वैल्यू है, A1 B1 C1 का वैल्यू है, A1 B1 C1। व्हाट इज द प्रोसेस? x2 माइनस x1, 10 लैम्बडा प्लस 11 माइनस 2, मतलब क्या आएगा, 10 लैम्बडा प्लस 9, 11 माइनस 2, 9 आएगा ना,
-4 लैम्बडा -2 माइनस माइनस +1 -4 लैम्बडा -2 +1 तो क्या होगा -4 लैम्बडा -1 -11 लैम्बडा -8 -5 -11 लैम्बडा -13 अरे आएगा कि नहीं Z2 -Z1 -8 -5 -13 ये लैम्बडा में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है। क्लियर। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L theoretically A2 B2 C2 what is the value of A2 B2 C2 direction ratios of the line 10 -4 -11 राइट है। अभी आगे ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गया लाइन के, ये डायरेक्शन रेशियोज है पीएम के, बट व्हाट इज द गिवन कंडीशन पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड परपेंडिकुलर रहा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। So put in this equation values and find the value of lambda. Put a lambda in this equation. This is the equation number 1. Find the put of perpendicular. After that to find the length of perpendicular. आएगा आप लोगों को। पहला टाइप देख रहे हैं फाइंड द पुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये पुट ऑफ परपेंडिकुलर या शॉर्टेज डिस्टेंस दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में होता ही है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और कंसेप्ट भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आज तो हम सिर्फ ये पुट ऑफ परपेंडिकुलर स्टडी कर रहे हैं।
लैम्बडा फाइंड करो, पुट इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ यम। यम के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए? 21, राइट है का, -6 -19, लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला? 1, करेक्ट है। हाँ फाइंड करो। Find the coordinate of M and length of perpendicular. Same type, to try the third and fourth one, find the length of perpendicular. Length of perpendicular means first find the foot of the perpendicular, वो find करना ही है, उसके बाद ही हम length find कर सकते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आफ्टर दैट आपको मिलेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। आई थिंक थर्ड नंबर का डिफिकल्ट आता है, चेक करो क्या है, पता नहीं है वो आंसर राइट है नहीं पता नहीं है। फोर्थ वन का आंसर है 7 यूनिट्स। Try the third and fourth one. टू पार्ट रिमेनिंग है, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द प्लेन। प्लेन खत्म होते ही हमें पूरा एंट्रांस लेना है विद JEE। जेई के साथ सीटी का अच्छी तरह प्रिपरेशन करना है, दोनों का भी प्रिपरेशन करना है। और ये चैप्टर होने के बाद सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे पेपर 2 के। पेपर 1 का तो ये लास्ट चैप्टर है, मतलब पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में, मतलब अक्टूबर में 100% सिलेबस कंप्लीट रहेगा। आगे फिर से हमें रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, 11 का भी एंट्रांस लेना है। You try the third and fourth one.